नेम ही नहीं आ रहा है रेगुलर वाले में ना, तो ओके ओके। मैंने सर को बोला है, जो उस दिन देख रहे थे, कुछ टेक्निकल इशू है, तो ओके इसलिए शायद प्रॉब्लम हो रहा है। ओके ओके, नो इशू नो इशू। आज भी मैंने गूगल फॉर्म ही आपको डिस्ट्रीब्यूट किया है। द मोमेंट यू आर गेटिंग सेटल्ड विद दिस प्रोसेस कि आई एम सी आर पी, we will eventually shift to IMCRP test. The moment it is all done, like your names are visible, many students' names are not visible, so it's fine. I'll be making a distinction list in terms of regular students and executive students. Okay, okay. So let's talk about very very less strength. How many students were there in the first class, bache? Yes, 9. 9. Okay, okay. Is it a Monday effect? Okay. Anyways, let's start with the topic. I have given you sorry, Google test. After my class, you please do it. Though it is open for the day, but you do it and complete the work, right? Immediately the moment class gets over, you have 15 minutes with you. Okay. So let's get started. We are going to talk about the other types of contract. In case you wanted to ask me anything or you have certain doubts or anything in your mind, please say. Any student who wants to say something? No, ma'am. Okay. So I was onto this slide. Right. So we have discussed valid, invalid, and voidable, right? Please understand, valid contract is the one which is fulfilling all the norms and regulations of Section 10. Invalid, if any of the condition is broken or violated, it turns out to be invalid. Voidable or void contract. Just a minute. Nisha, I am new, don't know what to appear. No, Nisha, you click on the test. Google form is available. So you click on this. Let me show you how you have to do it. Uh, just a minute. Like I have given you this much information, right? Where is my class information? Yes. So you will click on this link, right? You will, the moment it is clicked, it will be appearing look like this, right? Okay, um, since I have to sign in, the moment you are onto this, you will sign in, okay? Let's talk about my personal ID. Okay, so you will be putting up your information here, okay? Like your ID, though I'm not going to fill it, I'm just going to tell you your name, again, write your email ID, for example, this, then the provision of this, then you have to click on this, and the moment it is done, it is submit, okay? So it would be like from the link which I have given you from this, right, beta? Yes. Okay, okay. Any doubt to anyone? So you have to click on the link which is given over here, right? The moment my class gets over, you will be clicking on this link and you will be doing it in the manner that you feel, right? Yes. Is it clear? Okay. Okay, okay, fine, fine. Just a moment, let me take your attendance. I have to note down your name. If your names are coming on IMCRP, it is fine. Let's get started. I was onto this.
When we talk about valid, invalid, void and voidable, please understand how the nature gets changed. If all the conditions are fulfilled, it is valid. The सारी जो भी निर्धारित सेक्शन 10 के अंदर कंडीशंस आ रही हैं वो सब आप मान रहे हो, जैसे कि आपकी ऑफर एक्सेप्टेंस वैलिड है. डोंट फॉरगेट दैट दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस, राइट? You have to learn it in this manner when you are stating it. Please be on time, bache. Okay, so when all the section 10 conditions are fulfilled, it is valid contract. And if any one or two are broken, violated, ना मानी गई, नहीं fulfill हुई, तो वो invalid हो जाएगा. Void, which is from the beginning, is void, null, zero, right? It becomes void. Yes, sometimes void contract is not void from the beginning, but it is in between. यानी कि सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो जाए, काम करते करते रुक जाए और उसके बाद ना हो पाए, that is called becomes void. Voidable, that means it is valid till the party agrees. The moment party is disagreeing, it becomes void. यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जब तक आप मान रहे हो तब तक वो वैलिड है. The moment it is declined, it is rejected, it becomes void. I gave you example. जैसे मान लीजिए there is one contract which is not having free contract, right? तो क्या हम invalid contract को voidable बोल सकते हैं? No. इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि अब एग्जांपल सेम लेंगे बट बताऊंगी इनवैलिड कब होगा और वॉइडेबल कब होगा. मान लीजिए दिस पॉइंट, फ्री कंसेंट. Consent is not free and the person has spoken against it. Please understand. दो पार्टीज के बीच में कंसेंट वाज नॉट फ्री या कंसेसस एड इडम नहीं था, सिमिलर थिंकिंग नहीं थी, तो वो इनवैलिड कहलाएगा, वॉइडेबल नहीं. जैसे कि ए वांटेड टू सेल हिज कार टू बी, which car, it is not clear, which model, it is not clear. Then in that case there is no consensus, there is no contract, it is invalid, right? Clear? Now most important, void becomes in terms of void ab initio, जिसमें हमें पता है कि सारी कंडीशंस फुलफिल हो और ये नहीं है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, या आपने ये प्रूव कर दिया कि माइनर वाज मेजर तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, स्टिल इट इज void. You have to go through the documents which state date of birth. Normally when you look at the admission cycle, they take your date of birth proof whether you are eligible or not. In our times when you talk about education policy, there was a norm कि इस एज तक आप इसको आपको ये क्लास में होना चाहिए, तो नंबर ऑफ स्कूल लास्ट ईयर तक यही फॉलो कर रहे थे. अब क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो इट इज गॉट चेंज. So when we talk about pre-consents या consensus ad idem, जो एक चीज नहीं है and person speaks against it, the moment the contract is made, it is invalid. Voidable is person does not speak initially. Only difference is उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि कोई प्रोविजन तोड़ी होगी, कोई प्रोविजन फुलफिल नहीं हो रही होगी, but the person does not speak. Person agrees. The moment person agrees, it is valid. The moment person speaks against the contract, it is void. So understand the difference when I use this invalid and voidable. Invalid is from the beginning person is speaking against it. No, my consent is not free. They have taken my consent at the gun point. फिर जब आपने गन पॉइंट पे उससे साइन करवाए हैं और वो पर्सन इमीडिएटली वो कॉपी लेके कोर्ट पे पहुंच जाता है, वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा. वॉइडेबल कि आपने गन पॉइंट पे साइन कराए हैं और आप बोल नहीं रहे हो, आप उनको लैंड दे रहे हो, बट आपको लगता है कि नाउ इट इज इनफ, आज मेरा ऊपर की लैंड ली है. मान लीजिए कोई सीएम आपके घर में आके कहता है कि नाउ वी नीड योर दिस पोर्शन फॉर द नेटवर्किंग कंपनी, आपने इमीडिएटली डिक्लाइन कर दिया, इट इज इनवैलिड, कंसेंट इज नॉट फ्री. आपने मान लिया ओके, तो आपने नेटवर्किंग कंपनी को दे दिया. फिर कुछ महीनों के बाद सीएम आपसे आता है कि नाउ वी नीड दिस एरिया एज ए गार्डनिंग. फिर that is when you speak against the same contract which is defined and changed, it is void. So voidable has two properties.
It is valid till the time party is not speaking against it, till the time aggrieved party is accepting it. It becomes void the moment party speaks against it. Am I clear, bache? Is it clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, okay. So valid, invalid, void, and voidable. These are the most important contract. Number 5 is illegal contract. Understand, illegal contracts are those contracts which are against the IPC. Very important term. इंडियन पेनल कोड के अगेंस्ट अगर आपका कोई बिजनेस है, लाइक ड्रग्स स्मगलिंग, then in that case that business and that contract is called illegal. So any contract which is not ethical contract, which is not moralful contract, which is violating the public policy or interest of public, or any contract which is against IPC. अगर एक लाइन में मुझे समझाना हो आपको तो I will tell कि any contract which is violating the norms of Indian Penal Code. जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स इंडियन पेनल कोड के अगेंस्ट होंगे वो सारे के सारे इंडियन पेनल कोड, यस। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट इस कोड के अगेंस्ट होंगे, लाइक ड्रग्स स्मगलिंग, इलीगल बिजनेस और trafficking or honoring or child commissioning or anything which is against it, this list keeps on updated every time. The moment crimes are increasing, that these kinds of contracts are illegal. उसमें चाहे पार्टीज की कंसेंट हो, कंसिडरेशन भी हो, फ्रीली दोनों ने साइन किया है, बट स्टिल इट विल बिकम इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो जरूरी नहीं है कि सेक्शन 10 की प्रोविजन सारी मान लें और सारी पूरी करें उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल ही हो। So any contract which is in the nature of crime, which is violating the provision of Indian Penal Code, that is called illegal contract. वो अमान्य कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसने पब्लिक का इंटरेस्ट तोड़ा है, पब्लिक की पॉलिसी तोड़ी है, या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, या उन्होंने कोई एथिकल काम नहीं किया है विच इज फेवरेबल। हाँ, ऑल दोज कॉन्ट्रैक्ट्स आर अमान्य। अमानवीय मतलब कि वो माना ही नहीं जाएगा, उसमें दोनों पार्टीज को सजा होगी। द मोमेंट इट इज फाउंड, इट इज बेसिकली कमिंग अंडर द एक्शन ऑफ द अथॉरिटी। जैसे नारकोटिक्स ड्रग ब्यूरो है, राइट, तो वो अगर कोई ड्रग का मैटर है तो इलीगल तो है ही है, और पेनल्टी किसके अकॉर्डिंग होगी? कौन डिसाइड करेगा कितनी पेनल्टी है? उसके लिए आपकी एजेंसीज बनी हुई हैं। तो वो पुलिस का मैटर है, वो कोर्ट का मैटर है, वो किसी एजेंसी का मैटर है। ऑल दोज कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। इज इट क्लियर बेटा? Yes, illegal contract Yes, is ma'am. okay. Okay. Last is Yes, ma'am. unenforceable. Good. Unenforceable means the contract which cannot be run. Please understand. Any contract which was valid and enforceable. जैसे कि मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट का क्या बताया था कि it is agreement plus enforceability. Let me tell you this term with the example. आज जो रिलायंस कंपनीज आप देखते हो, टेक दिस एग्जांपल व्हेन दिस कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड 1973 में ये रिलायंस कंपनी बनी थी एंड द नेम वाज नेमक्स लिमिटेड एंड दैट टू इन कर्नाटका। इनका हेड ऑफिस उस टाइम पे कर्नाटका होता था। 1973 में इनको COI इशू किया गया, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इट वाज नेम वाज म्योनमॉन लिमिटेड इन 1973 कर्नाटका। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वर्ड कर्नाटका। 2 साल बाद उनको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दिया गया। आई विल टेल यू अबाउट दी सर्टिफिकेट, ये हमारे कंपनी लॉ में आएंगे। बट अभी ये मान लीजिए कि जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उनको 2 सर्टिफिकेट लेने होते हैं, एक जिसमें उनको बिजनेस स्टार्ट करने की परमिशन मिलती है और एक जो इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन इज द फर्स्ट सर्टिफिकेट बेटा। फर्स्ट सर्टिफिकेट का मतलब क्या है कि वो सारे काम रिगार्डिंग द बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर उन्होंने इंडस्ट्री बनानी है, फैक्ट्री लगानी है, लैंड खरीदनी है, वो सारे काम ये वाला सर्टिफिकेट मिलते ही हो सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। द मोमेंट देयर कंपनी इज रेडी, फैक्ट्री रेडी हो गई है, उन्होंने इंस्टॉल कर लिया है, उन्होंने मशीनरीज लगा ली हैं, देन कंपनी सेकेंड सर्टिफिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें वो बिजनेस स्टार्ट कर सकती है ऑफिशियली। दे कैन सप्लाई द गुड्स टू द मार्केट।
1973 में म्योनमन लिमिटेड को कर्नाटका ने ये वाला सर्टिफिकेट दिया और 2 साल बाद ये वाला सर्टिफिकेट आ गया था 1975 में। अंडरस्टैंड दिस कि अब जो कंपनी बनी है वो कर्नाटका गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है, कर्नाटका गवर्नमेंट के रेगुलेशंस उनको फॉलो करने पड़ेंगे। 1976 में रिलायंस अगेन एक चेंज में जाता है कि नाउ द नेम इज म्योनमन इज नॉट करेक्ट, तो मेरे को चेंज करना है एंड दे मूव टू वन अनदर नेम रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब उसके बाद आरटीए लगा दिया, तो दिस वाज टेक्सटाइल। 1976 में फिर उनको फॉलो करना पड़ा सेम प्रोसीजर। 1978 में उन्होंने फिर चेंज किया, दिस वाज द मेजर चेंज जिन्होंने उन्होंने नाम रखा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टेक्सटाइल हटाना है अब। अंडरस्टैंड दिस, अब ये वाली जो कंपनी बनी थी ये कर्नाटका में नहीं, उन्होंने अपना हेड ऑफिस भी चेंज कर लिया था, इट वाज मुंबई। इनफोर्सिबिलिटी, यहां जो जितना भी बिजनेस हुआ, यहां जितना भी काम हुआ, यानी कि 78 में जैसे ही उन्होंने शिफ्ट किया अपना बेस, तो वो सारे कर्नाटका कॉन्ट्रैक्ट्स विल नॉट बी फोर्सिएबल। जैसे जब तक कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ थे, कर्नाटका गवर्नमेंट के रेगुलेशंस, जहां जितनी पार्टीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट था कर्नाटका गवर्नमेंट के रेगुलेशंस फॉलो होते थे जिन जिन पार्टीज के साथ था, राइट। द मोमेंट इट शिफ्टेड, उन्होंने एप्लीकेशन डाली, वो अप्रूवल हो गई, मुंबई में आ गए, तो मुंबई वाली गवर्नमेंट दैट मींस बॉम्बे गवर्नमेंट रेगुलेशन स्टार्टेड फॉलोइंग। अब आप कहें कि वो कर्नाटका में जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था वो चलेगा, नो, that will take place in new way in the Bombay government regulations. This is the part of the fact। जैसे कि जहां तक 3 साल 5 साल उन्होंने कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ काम किया है, तो वो वाले सारे कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से बनेंगे अगर कोई कंटिन्यूइंग वे में है। So Reliance Industries, look at this, the moment it is changed, now all those contracts of Karnataka government is unenforceable। क्या बोलेंगे? अनइनफोर्सिबल। अब कौन से इनफोर्सिबल है? मुंबई गवर्नमेंट, बॉम्बे गवर्नमेंट के। अनइनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी एनफोर्स इन पर्टिकुलर प्लेस ड्यू टू सम रीजन, टेक्निकल रीजन, या रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, या अब सिग्नेचर अथॉरिटी सेम नहीं रही, कोई भी कारण हो सकता है, वो अनइनफोर्सिबल माना जाएगा। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स 78 से पहले के कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ थे रिलायंस के, वो सारे के सारे दोबारा बनेंगे, बट वो इनफोर्सिबल अब कहां होंगे? मुंबई कोर्ट में, बॉम्बे रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। Unenforceable contract means when the contract because of some technical reasons cannot be enforced in particular place, वो उस प्लेस में नहीं आएगा। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि नॉर्मली जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें लिखा होता है कि आवर कॉन्ट्रैक्ट विल बी एनफोर्सेबल, 30 हजारी कोर्ट डिसीजन विल बी फाइनल, होता है ना। पार्टीज पहले डिसाइड कर लेंगे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट का जो फाइनल डिसीजन आएगा 30 हजारी में आएगा, यानी कि ना तो आपके पास राइट है सुप्रीम कोर्ट जाने का, ना ही हाई कोर्ट जाने का, ये जजमेंट जो भी आएगी वो फाइनल मानी जाएगी। दोनों पार्टीज अगर साइन कर देती हैं तो इट इज इनफोर्सेबल टू 30 हजारी एंड रेस्ट कोर्ट्स आर नॉट वर्केबल। इज इट क्लियर? यस बेटा। Yes, ma'am. तो अनइनफोर्सिएबल का मतलब है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसी रीजन से एक प्लेस पे इनफोर्सेबल है, दूसरे प्लेस पे नहीं कर सकते, आप चैलेंज नहीं कर सकते। कर्नाटका गवर्नमेंट 1978 के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज को अपने प्लेस पे चैलेंज नहीं कर सकती। व्हाई? बिकॉज शिफ्ट हैज बीन डन, मतलब नेम हैज बीन चेंज, नंबर 1, एंड शिफ्ट ऑफ हेडक्वार्टर हैज बीन चेंज, नंबर 2। तो नाउ ज्यूरिसडिक्शन किसकी आ गई? बॉम्बे कोर्ट की। अब ज्यूरिसडिक्शन किसकी चली गई? कर्नाटका की। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो सारे के सारे नए बनेंगे अंडर द बॉम्बे गवर्नमेंट रेगुलेशन। एंड व्हाट अबाउट दोज कॉन्ट्रैक्ट विच वर मेड अर्लियर? मान लीजिए कि वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट जो कर्नाटका गवर्नमेंट के बने हुए वो नए बनेंगे, तो नए वाले क्या कहलाएंगे? इनफोर्सिएबल। जो पुराने वाले अब नहीं चलेंगे उनको क्या कहोगे आप? अनइनफोर्सिएबल। यस बेटा। Any doubt to anyone? No, No, ma'am. ma'am. Okay. Based on formation, yes, formation means it is dependent upon how company is making the contract. Remember, these contracts are very, very important because they are challengeable and suable. Express when it is in writing or in oral, but oral contracts are
generally not challengeable. Oral contracts exist when there is a fiduciary relationship. मैं एक टर्म आपको समझाना चाहूंगी. FIDUCIARY. Fiduciary relationship means relationship based on love, faith and trust. Right? आपके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में हैं, दे मे और मे नॉट हैव फिड्यूशरी रिलेशनशिप, बट दे आर एक्सप्रेस. एक्सप्रेस का मतलब आपने बता दिया, ए वॉन्ट्स टू हैव ए कार ऑफ बी. आपने फ्रेंड्स में बात की है, कॉन्ट्रैक्ट तो जरूर है बट ऑरल कॉन्ट्रैक्ट है. दैट मीन्स दैट इज वर्बल, दैट इज नॉट इन राइटिंग. ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स आर जनरली फिड्यूशरी. चैलेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट आपके ऐसे हैं विच इज बेस्ड ऑन अफेक्शन, अफेक्शनेट टर्म, राइट? लव, ट्रस्ट, केयर, अफेक्शन, faith, all those contracts are in verbal, they are not in writing. जैसे कि आपके दोस्त ने आपसे उधार मांगा, कॉन्ट्रैक्ट तो है, यार देना जरा 2,000 रुपए, 10 दिन बाद लौटा दूंगा. 10 दिन 2,000 लौटाना, वो सब कॉन्ट्रैक्ट है. टू पार्टीज, आपने एग्री कर भी लिया, आपने दे भी दिया, बट उसमें क्या नहीं आया? रिटर्न एंड रजिस्ट्रेशन. तो वो ओरल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा. ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड बट दे कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द लॉ because those contracts are based on fiduciary. Fiduciary means any contract which is based on love, care, faith, trust, affection, all those terms. But when it is in writing, they are challengeable, they are suable. Implied contracts, yes. Certain contracts are implied in nature. They are not going to create a contract every time with the customer. If we take the example of hotel industry, cafe coffee day, जाओगे, कॉफी ऑर्डर करोगे, कॉफी पी लोगे, पेमेंट कर दोगे, डन. दिस इज इम्प्लाइड. मेट्रो में गए हो, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में. दिल्ली मेट्रो एक कागज लेके नहीं खड़ा होगा कि आप पैसेंजर हैं, साइन करिए, स्टैम्प करवाएंगे और उसके बाद आपको सफर करने देंगे. नो. सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स आर सच विच आर रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द लॉ इटसेल्फ. मतलब जैसे दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन या जयपुर मेट्रो कॉर्पोरेशन बनी, तभी एक लॉ बन गया, तभी उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और उस कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने सब कुछ लिख दिया, टर्म्स कंडीशन, जो भी पैसेंजर आएगा. बियरर चेक, बियरर चेक के एग्जांपल लीजिए. बैंक हर एक कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा. एक बार आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, आपका अकाउंट है, तो आप तो डील कर ही सकते हो, बट आपने किसी को चेक दे दिया तो ऐसा नहीं है कि बैंक इन कैश नहीं करेगा उसको. Take the example of bearer check, that is implied contract. Implied contract means not necessarily जिसका कस्टमर का अकाउंट है वही आएगा. Certain contracts are implied in nature. Implied का मतलब है कि they may or may not be in writing or in verbal, but they are inferred. Inferred means implied, automatic. There is a automatic feature of contract creation. So implied contracts are those contracts which are automatically created the moment we enjoy the service, the moment person enjoys the service. Metro example is very suitable. Hotel examples are very suitable. Uber example is very suitable. तो Uber कंपनी हर एक आपको एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ, आपको ध्यान रहे. इम्प्लाइड, उबर कंपनी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी. आपने बुक किया, आपने अपने नाम पे बुक किया है तो भी ठीक है, कोई आपके बिहाफ पे जा रहा है आपके फैमिली मेंबर में से तो भी ठीक है. दैट मीन्स सर्विस ली, पेमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट है, बट दोज कॉन्ट्रैक्ट्स आर इम्प्लाइड. कल को आपने उबर बुक कर लिया और पेमेंट नहीं दी तो उबर कंपनी हैज ए राइट टू चैलेंज. प्लीज अंडरस्टैंड. टेक द एग्जांपल ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट्स, Myntra और ऑल. आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया द मोमेंट यू हैव प्लेस्ड द ऑर्डर. आप प्रोडक्ट लेने के बाद, यूज करने के बाद उनको पेमेंट नहीं करते हो, स्यूएबल है. कैसे स्यूएबल है? क्योंकि वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है. इज इट क्लियर बच्चे? यस. Yes, ma'am. ओके. थर्ड इज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. Quasi contract is that contract which is entered by the parties, but it is imposed on the party by law. So parties are not entering into a contract. जैसे A और B ने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो parties are clear. No, it is not like that. Parties are not there.
लॉ ने ही वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर दिया। जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ फाइंडर ऑफ ए लॉस्ट गुड, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। व्हाट दिस इज, किसी एक पर्सन को आपका पर्स मिला, उस पर्स में आपकी इंफॉर्मेशन थी और आपका कार्ड था या कुछ भी ऐसी डॉक्यूमेंट थे जिससे आपको पता चल सकता था। तो एक तो केस मैं ये समझाऊंगी, उसने आपको वो पर्स भिजवा दिया और कहा कि मेरा ये खर्चा आया है रजिस्ट्रेशन का, रजिस्ट्री का, आप मुझे ये अमाउंट दे दो। तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई भी फाइंडर को कोई चीज मिलती है, वो आपको पहुंचाने के लिए जो खर्चा करेगा वो कॉन्ट्रैक्ट के, आप मना नहीं कर सकते हो, वो चैलेंज कर सकता है आपको। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द पार्टीज आर क्रिएटिंग, रेदर इट इज ए लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। या दूसरा केस, सामान मिला, पर्स मिला, बट पता ही नहीं आपका पता क्या है। फिर उस पर्सन ने नियर बाय, जैसे पुलिस होती है या पोस्ट ऑफिस होता है, जैसे भी एफर्ट्स करके पुलिस को पहुंचाया, पुलिस आपका पता ढूंढती है, तब भी वो पर्सन दैट इज ए हैज ए राइट टू क्लेम द एक्सपेंडिचर फ्रॉम यू। दैट कॉन्ट्रैक्ट इज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट क्रिएटेड इन अ सिंपल प्लेन फॉर्मेट जहां पार्टीज होंगी, कंसेंट होगा, कंसिडरेशन होगा। नो, certain contracts are created by law on a automatic process. So this is finder, that is very valid example। किसी भी पर्सन को कुछ मिलता है तो अकॉर्डिंगली ड्यूटी क्या है, रिटर्न करना है। जैसे आपने कभी यार न्यूज में देखा होगा कि आपको जो है मेरा ये सामान गुम हो गया है, मुझे यहाँ पे कांटेक्ट करें, ये इनाम दिया जाएगा, कुछ ऐसा, वो उसके लिए भी एलिजिबल हो जाएगा। तो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में आपने कोई इंफॉर्मेशन दी है अपने सामान गुम होने की और वो पता लग जाता है उस पर्सन को, तो नॉट ओनली रजिस्ट्रेशन चार्जेस, कंपनसेशन भी वो ले सकता है, रिवॉर्ड के लिए भी वो इंटाइटल्ड है, आप मना नहीं कर सकते उसको। प्लीज अंडरस्टैंड। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर क्रिएटेड बाय लॉ, नॉट बाय द पार्टीज। इज इट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. Is Yes, it ma'am. clear? Okay. Yes, ma'am. So express, implied, and quasi. Good, good, very good. Express is when the contract is in writing or in verbal. Verbal याद रखिएगा, it is non-challengeable, it is not suable, it only exists out of fiduciary relationship. Implied, that every time contract creation is not possible by the company, right? आपने कोका कोला पी है तो कोका कोला पीने के बाद आपने शॉप से लिया, तो आप शॉप वाले को कॉन्ट्रैक्ट करोगे अगर आपकी तबीयत खराब हो गई? नो, शॉप वाला इज नॉट इम्प्लाइड वन। आप कंपनी को ही स्यू करोगे, बट अकॉर्डिंगली यू हैव टू रीड इट। तो कंपनी का चाहे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट ऑन दैट बेसिस अगर आपको लगा कि यस यू हैव यूज द प्रोडक्ट एंड योर हेल्थ इज सिक, तो इम्प्लाइड है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को चैलेंज कर सकते हो, स्यू कर सकते हो। सारे कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है क्रिएट करना, राइट? तो जितने भी आपके पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना बेटा, दैट मीन्स कंपनी एंड पब्लिक इन्वॉल्व होती है, दोज कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑलवेज इम्प्लाइड। तो आपको ध्यान में कैसे रखना है, एक्सप्रेस में टू और मोर देन टू पार्टीज आर वेरी मच स्पेसिफिक एंड इट इज ए स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। तो जितने भी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो एक्सप्रेस होंगे। जितने भी आपके जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जिसमें मास इन्वॉल्व है, ऑप्शंस इन्वॉल्व हैं या बिडर्स इन्वॉल्व हैं या पब्लिक एट लार्ज इन्वॉल्व है, वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड होंगे। तो प्लीज अंडरस्टैंड, व्हेन इट इज ए स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम ए टू बी, राइट, इट इज एक्सप्रेस। When it is a company to public, it is always implied. I hope it is clear. When it is Yes. quasi, parties are not clear. Yes, parties है ही नहीं, A, B, A, public कुछ है ही नहीं. It is only the law which is creating the contract, right? So example is finder of lost goods. किसी भी फाइंडर को कुछ भी आपका सामान मिला है, he or she has put up expenditure to reach the product to your place. All those expenses are entitled to be claimed by the party. Not only expenses, I'll be covering about it, not only expenses but compensation also, but reward also। जो भी आपने midway announce किया है वो सब के लिए एलिजिबल होता है। The party is under the quasi contract।
So quasi contracts are the contracts which are neither expressed nor implied nor created by parties but created by law. Yes beta, is it clear? Yes, ma'am. Okay, based on performance. Yes, performance. To which is expected from the contract. Performance is a task obligation, right? You can say it is a task, it is an obligation, right? Or any work, task, obligation, assignment, कुछ भी बोलिए, executed contract, where both the parties have completed their job, where they have completed as per the contract. Now nothing is left over. That contract is called executed. A has sold the car, B has purchased the car, B has paid the price, A has received the price. Contract is complete, it is executed. So when contract is complete by both the parties with their obligations, it is done, it is known as executed contract. तो मेरे को अगर एक लाइन में आपको समझाना है तो executed contract is called done contract, right? These contracts are done. Executory, yes, something has to be performed. It is in the leftover. They are yet to perform their obligation. यानी कि ए ने कार सेल करनी है बट अभी वो डेंटिंग वेंटिंग रिपेयर सब करवा रहा है. बी को कार मिलेगी, बी ने अभी पेमेंट करनी है. दैट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट कंप्लीट. सो डन कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्जीक्यूटेड एंड इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड एग्जीक्यूटरी. आई होप द डिफरेंस इज क्लियर. कॉन्ट्रैक्ट जो कंप्लीट नहीं हुए वो एग्जीक्यूटरी है, जो कंप्लीट हो गए वो एग्जीक्यूटेड है. एनी डाउट? यस बेटा. No, ma'am. जैसे कि ए मैन है और एक बी मैन है, ठीक है. उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मनी का. ए ने बी से कुछ मनी लिया है एग्रीमेंट करा के, ठीक है. और बी है जो फैमिली में अकेला है, राइट. तो जैसे अगर बी को कुछ हो जाता है बीच में कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे कि आधी मनी ले ली उसने और आधी बाकी है उसका, यानी कि ईएमआई चल रही है उसकी. फिर बी अगर उसकी बीच में डेथ हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट किस में आएगा और किसको देना पड़ेगा फिर ए को? मैं बताने लगी हूँ. कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटरी, नंबर वन. कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, किसी भी पार्टी का काम बचा है तो एग्जीक्यूटरी ही कहलाएगा. ए ने अगर कंप्लीट कर दिया है, बी का अमाउंट वापस बचा है तो वो मैं अभी आगे करवाने लगी हूँ, बाईलेटरल और यूनिलेटरल, उसमें बताऊंगी. बट अभी समझिए कि कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कंप्लीट, ठीक है. जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होते उनकी दो टाइप्स हैं, राइट, सॉरी वन टाइप है. और कौन करेगा, प्लीज अंडरस्टैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक टर्म्स हैं जिसमें पार्टीज ही इन्वॉल्व हैं, पार्टीज के आगे लीगल हियर्स को राइट नहीं दिया गया है एक्सप्रेसली, तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट उसी टाइम पे फिनिश हो जाएगा और उसको लॉस बेयर करना पड़ेगा. जनरली कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं बनते हैं. कॉन्ट्रैक्ट में एक लाइन लिखा होता है कि लीगल हियर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल, HEIRS. दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yes, HEIRS. So legal heirs. लीगल हियर्स का मतलब है कि अगर इट इज लाइक एनीथिंग हैपन टू द पार्टी, तब उनके जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उसका सन, उसकी वाइफ, उसका डॉटर, कोई भी, इसका हस्बैंड, स्पाउस, नहीं तो कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो लॉ अपने आप से एक एडवोकेट हायर करके उसको दिलवाती है फ्रॉम द फैमिली. तो लीगल हेयर्स अगर इन्वॉल्व हैं तो देन इट इज लाइक पास ओवर कॉन्ट्रैक्ट, राइट बेटे. और अगर स्पेसिफिक टर्म्स हैं कि लीगल हेयर्स नहीं डिसाइड करेंगे तो फिर जो पार्टी का लॉस होगा वो लॉस माना जाएगा और जो पार्टी नहीं है अभी वो कॉन्ट्रैक्ट माना कंप्लीट माना जाएगा. इज इट क्लियर बेटा? यस, इज इट क्लियर बच्चे? योगेश समझ आ गया बेटा? हाँ मैम, हाँ.
तो आपको आपको ये ध्यान रखना है कि जब दोनों पार्टीज ने अपना टास्क कंप्लीट कर दिया, अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर दी, तो इट इज एग्जीक्यूटेड। जब दोनों को करनी है, इट इज एग्जीक्यूटरी। यूनिलेटरल का मतलब है वन पार्टी, यूनिट, यूनिट का मतलब होता है वन। अगर एक को कंप्लीट करनी है और एक ने कर दी है तो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड यूनिलेटरल। जैसे अभी आपकी एग्जांपल थी कि ए ने बी को पेमेंट दी है और बी उसको वापस करेगा, राइट। ए ने अगर पूरा अमाउंट दे दिया, ए का पार्ट कंप्लीट हो गया, बी ने उसको आधा अमाउंट वापस कर दिया, अभी आधा बचा है, तो दिस इज यूनिलेटरल, यानी कि बी के पार्ट से कुछ होना बाकी है। सो वन परफॉर्मेंस फ्रॉम वन पार्टी इज पेंडिंग एंड वन पार्ट इज कंप्लीट। जब कॉन्ट्रैक्ट में एक हिस्सा कंप्लीट हो जाए और दूसरे का ऑब्लिगेशन बचा हो तो उसको बोलते हैं यूनिलेटरल। और बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट where both have completed, so executed contract and bilateral contracts are same। सेम का मतलब है कि बोथ पार्टीज हैव कंप्लीटेड देयर जॉब, सो बाइलेटरल इज बोथ, इट इज रिलेटेड टू बोथ बेटा। यस, दैट मीन्स बोथ पार्टीज हैव कंप्लीटेड इट, राइट बेटा। so when we talk about executed and bilateral, it is one and the same thing. On the basis of performance, executed contract is called bilateral contract। yes, any doubt? यस बेटा, क्लियर है ये चारों। एग्जीक्यूटेड जब पूरा कंप्लीट है, डन कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जीक्यूटरी जिसमें अभी कुछ होना, अभी करना है, उन दोनों को काम करना है, ऑब्लिगेशंस पेंडिंग है। यूनिलेटरल एक पार्टी ने कंप्लीट किया, दूसरी पार्टी का भी पेंडिंग है। और बाइलेटरल दोनों ने ही कंप्लीट कर दिया, राइट बेटा। यस, Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay, very important, offer। what is offer? I have given this as a information according to section 2A। जब मैं आपको बता रही हूँ कैसे पढ़ना है सेक्शन, it is section 2 subsection A। how it is read? according to section 2 subsection A, this is the definition which is being discussed by the law, we cannot change it, rather we have to learn this word by word। when a person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing something with a view to obtaining the assent of that other to such an act or abstinence, he is said to make a proposal। very important, when a person signifies to another, proposes to another his willingness to do something, do का मतलब है पॉजिटिव, करना है, राइट। टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग नेगेटिव, ये काम नहीं करना है, राइट। so that is something the person is making a proposal, the person is making an offer। जैसे कि अगर आज नोकिया कंपनी, लेट्स टेक द एग्जांपल, नोकिया goes to Android and say I have to make a contract with you। फोन मुझे भी अब स्मार्ट चाहिए, सैमसंग ने बहुत हिस्सा ले लिया है, तो मेरे को आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है और मुझे भी स्मार्ट लाइन में आना है, स्मार्टफोन में आना है। नोकिया हैज मेड ए प्रपोजल टू एंड्रॉयड टू डू समथिंग। सेम एग्जांपल, अगर नोकिया एंड्रॉयड के पास जाता है कि अब आपको मेरे साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करना है, सैमसंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है आपको। टू abstain एंड्रॉयड, नॉट टू गो टू सैमसंग, टू abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग। प्लीज अंडरस्टैंड, पॉजिटिव और नेगेटिव, मोनोपोली क्रिएट करनी है, कंपटीशन कंट्रोल करना है, तो आप ऐसा कर सकते हो। किसी एक कंपनी के साथ टाई अप करके कहोगे कि आप, मैं इस लाइन में प्रोडक्ट निकाल रहा हूं, आप नहीं निकालोगे, इट इज अब्सटेनिंग। अब्सटेनिंग मीन्स रोकना, आपने उसको कह दिया कि ये नहीं करना है आपने, राइट। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन, सबसे पहले अगर ओरिजिनली जाने तो बेबी प्रोडक्ट, अब जितने भी आ रहे हैं, अगर जॉनसन एंड जॉनसन ये कह दे कि मी कंपनी को या बेबी कंपनी को कि आपको अपने प्रोडक्ट नहीं लेके आने हैं मार्केट में, हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो जॉनसन इज मेकिंग एन ऑफर, नंबर 1। नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, टू abstinence the another company not to enter into the market, नंबर 2। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू टेक देयर व्यू। करोगे आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट, आप ये वाला काम करने के लिए मेरे लिए रेडी हो? जब आपने ये तीनों चीजें कर दी तो इसका मतलब आपने उसको ऑफर किया है, राइट। सो प्लीज अंडरस्टैंड, व्हेन ए पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर
his willingness to do or to abstain from doing something. Why? करने के लिए बोलना है या ना करने के लिए बोलना है, क्यों? with a view to obtaining the assent of that other to such an act or abstinence, he is said to make a proposal. एंड्रॉयड मान लेता है नोकिया की बात कि मैं सैमसंग से डील नहीं करूंगा, मैं अपना सॉफ्टवेयर किसी और को नहीं दूंगा, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपने उसके एब्स्टिनेंस को मान लिया, आपने उसके कहने को मान लिया, तो आपने प्रपोजल दिया है. सो प्रपोजल इज ऑफर. नंबर 1, very very important, 2 parties, right? It involves 2 parties. I gave you example, you can relate it. It is regarding doing or not doing something. Doing or not doing something, कुछ भी हो सकता है ऑफर में. हमें अपने साथ, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये मार्केट में हम इकट्ठे आएंगे, ये भी डूइंग है, ये भी ऑफर है. इकट्ठे आएंगे और आप आगे किसी और को नहीं दोगे, या आप अपना सॉफ्टवेयर हमारे को कंप्लीट बेच दो और आपका नाम हम यूज करेंगे, एंड्रॉयड अब नहीं रहेगा, अब सिर्फ नोकिया होगा. एप्पल क्या करता है? टेक द एग्जांपल ऑफ एप्पल. एप्पल ने सारी टेक्नोलॉजीज, अगर वैसे तो एप्पल फोन्स आर नॉर्मली बिल्ट अप विद देयर टेक्नोलॉजीज, है ना. एप्पल ने कितनी टेक्नोलॉजीज को टेक ओवर करके अपना ही यूनिट में कन्वर्ट किया हुआ है. वो एंड्रॉयड नहीं यूज करता है, वो उसके अपने सॉफ्टवेयर्स हैं. वो आपका ये व्हाट्सएप लॉन्च नहीं कर रहा है, तो ही हैज फेस टाइम, मतलब अपने ही सॉफ्टवेयर अपने फोन में डाले हुए हैं, ऑल बिल्ट अप बाय द एप्पल. इट मींस जो जो टेक्नोलॉजीज उसने खुद मैन्युफैक्चर की हैं या टाई अप करके चाइनीज कंपनी से कोलैबोरेट करके की हैं, नाम तो सिर्फ एप्पल आता है. सैमसंग में तो ऐसा नहीं आता. सैमसंग में क्लियर लिखा होता है एंड्रॉयड बेस्ड, या आपका जितने भी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं 5G, अब जैसे अगर रिलायंस लेके आ रहा है तो 5G बेस्ड, यानी कि टाई अप्स के साथ बना है, राइट. तो किसी पार्टी को ये कहना कि आप मेरे साथ काम करो, वो भी ऑफर है. नॉट डूइंग, वो भी ऑफर है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, willfully, please understand, this all is done willfully. तो वो सारा काम जो है लीगल वे में कर रहा है, it is not illegal. Then in that case, that is nothing but a proposal. So offer is when a person signifies to another that we have to do something or to abstain from something. Such act or abstinence is like he is making a proposal, right beta? Yes. Is it clear? Is this term clear to you all? Yes, ma'am. So offer has to be Yes, ma'am. very well defined. Yes, good, very good. Offer has to be very well defined कि it may be collaboration of doing something or stopping another party not to do something. मतलब या तो आप मिलके कुछ काम करोगे या आप दूसरे पर्सन को स्टॉप करोगे, ये तुमने नहीं करना है. तो जो नहीं करना है, नॉर्मली इट इज अ प्रैक्टिस टू कर्ब आउट द कंपटीशन. कंपटीशन कम करने के लिए नंबर ऑफ कंपनीज आर डूइंग इट एंड इट इज अ वैलिड ऑफर. इट इज नॉट ए रॉन्ग थिंग दैट दे आर डूइंग. ओके, इज इट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. Okay, ma'am. So I'll request you to complete your online test. In case there is any doubt, just let me know. Personally, you send me a message. Yes, ma'am, there is some doubt regarding this. वैसे तो टेस्ट ओपन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट किसी बच्चे को टेस्ट ओपन नहीं होता है तो जस्ट सेंड मी ए पर्सनल मैसेज. ओके बेटा, विल मीट टुमारो अगेन. यस बेटा. गूगल शीट में ना जो हाँ. आपने लिंक दिया है, ठीक है. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उस पे ही टेस्ट करना है. ओके, Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you, ma'am.